everyone. Hope you all are in the pink of your health. As we had promised to make you meet new people while sitting at home, we are back yet again with another episode of Kids Live. Today we have with us Dr. Sapna and Mr. Shishir, the co-founder of Kidspreneur. Dr. Sapna Yadav is the head of Department Education Technology at the State Council of Educational Research and Training, Government of NCT of Delhi. She is working as a project director for various projects like Entrepreneurship Mindset Curriculum, Online Capacity Building Program, LEAD, Diksha Delhi Digital Portal, and many more. Her areas of interest include working for the children, which may help them in growing in their personal and professional life both. Having more than 10 years of experience of teaching B.Ed and successful handling of projects in different disciplines like ICT in education, physics, etc., add value to profile. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you, Aditi. We also have with us Mr. Shishir today. Shishir is a serial entrepreneur, technology proponent who believes technology will touch our lives in future in never thought before ways. He has executed some challenging technology solutions for government and enterprise alike. He has a vision to transform the audience education sector in ways not thought before. Kidspreneur is just a start for him. Welcome, Shishir. Thank you for the welcome, Aditi, and welcome, Dr. Sapna. It's our pleasure to have you here, and I hope we'll get a different perspective how education and transforming education, I would say, those initiatives which you have already taking to improve the future thought leadership. And I hope and I'm looking forward to learn many more such knowledge things from you. Thank you. Thank you, Shishir. So, ma'am, now that we have got an opportunity to have you with us today, why don't you tell us something about SCRT? SCRT means State Council of Educational Research and Training. So SCRT की जो डेफिनेशन ये फुल फॉर्म है यही अपने आप में सब कुछ बता देती है. It's an educational institute. So SCRT is an autonomous organization established in 1988. Specifically मैं जो बोल रही हूँ दिल्ली के बारे में बोल रही हूँ. Established 1988 in pursuance to the recommendation of National Policy of Education 1986. So National Policy of Education 1986 के बाद established हुई. It's an organization or educational institute which works in the improvement of in the area to improve the quality of school education at all levels: primary, pre-primary, secondary, senior secondary, all levels. So SCRT, if I talked about particularly Delhi, so हमारी 8 DIETs हैं and 1 DRC. So DIETs means District Institute for Educational and Training, and DRC District Resource Center. So 8 DIETs and 1 DRC we have in SCERT Delhi. And the main function of SCERT Delhi is teacher education program. इसमें इन सर्विस एंड प्री सर्विस दोनों आता है. इन प्री सर्विस में हमारे जो डाइट्स हैं और डीआरसी हैं वहाँ डीएलएड का कोर्स चलता है, ईसीसी का डीपीएससी का कोर्स चलता है. ईसीसी रीनेम्ड हो गया है अभी डीपीएससी में. तो जो हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं वहाँ पे वो कोर्स करते हैं. 2 इयर्स का ये कोर्स होता है. उसके बाद उनकी प्राइमरी टीचर्स की जॉब लगती है. तो बेसिकली प्री सर्विस हम वहाँ ऐसे कैटर करते हैं. देन हमारा इन सर्विस होता है जो हमारे एग्जिस्टिंग टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, समटाइम्स इन प्राइवेट डिपार्टमेंट टू, हम उनकी भी ट्रेनिंग कराते हैं. तो वो हमारा इन सर्विस हो गया. सो बेसिकली टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम्स आते हैं हमारे: प्री सर्विस टीचर एजुकेशन एंड द इन सर्विस टीचर एजुकेशन. एंड द सेकंड मेन फंक्शन ऑफ एससीईआरटी इज मटेरियल डेवलपमेंट. तो मटेरियल डेवलपमेंट इज बेसिकली आपकी स्टेट में जो भी काम हो रहा है, जो कोई नई पॉलिसी आई है, आप कोई ट्रेनिंग करा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको जितना भी मटेरियल डेवलप करना है वो एससीईआरटी के मैंडेट में होता है कि उन्हें वो डेवलप करना है. लाइक आप आरटी आया था, राइट टू एजुकेशन, सीसी आया था. तो ये एससीईआरटी का मैंडेट था कि वो एससीईआरटी उसकी ट्रेनिंग कराएगा और उसका मटेरियल डेवलप करेगा. तो जितनी भी हमारी पॉलिसीज आती हैं तो हमारा मैंडेट होता है कि हम उनकी ट्रेनिंग कराएं अपने टीचर्स की, उनको इक्विप करें इन ऑल द पॉलिसी मैटर्स एंड देन उनके लिए मटेरियल प्रोवाइड करें. एंड द थर्ड पार्ट इज रिसर्च पार्ट.
So research is basically तो 2-3 तरीके की होती हैं, like school based research हो सकती हैं, action research जिसे हम बोलते हैं कि daily school में कोई problems आ रही हैं तो उसके लिए action research होती हैं. Then main research जो part है वो होता है हमारा policy intervention पे, कि suppose government कोई नया policy लेकर आई है तो उसका impact analysis करना, हमें उसका effectiveness check करना. For example, we started last year entrepreneurship mindset curriculum. So we do the impact study. We did the impact study for this entrepreneurship mindset curriculum. Also, and the online capacity building program, which you told earlier, that I am project director of that. हमने उसकी भी effectiveness check करी थी कि ये projects हमारे बच्चों के लिए, teachers के लिए effective है या नहीं है. So SCRT के basically 3 main programs में teacher education, material development and research, ये 3 main programs. So basically, as far as we could understand, SCRT is basically the backbone of the Delhi schools. Yes. Confidently saying yes. That's great to know about it then. So there's this NCRT also that we hear about a lot. So how do you think is NCRT different from SCRT? The basic main difference between SCRT and NCRT is that SCRT works at state level and NCRT works at national level. So हम SCRT में जो भी काम करते हैं, we always keep in mind the local contextualization, that we restrict to our state only, and the NCRT is basically works at national level. So वो उनके लिए जब भी वो कुछ भी policy develop करते हैं, कोई new curriculum develop कर रहे हैं, कोई training करते हैं, they always keep in mind that a child studying in the hilly area and a child studying in a suppose Jharkhand, Bihar, metro cities. So उनके लिए वो पूरे nation को cater करते हैं. जो diverse हमारा culture है उसको उन्हें along साथ में लेके चलना पड़ता है. So they worked at national level, and NCRT established in I think 1st September 1961 7 institutes को merge करके बनाई थी. तो उसके बाद NCRT ने काफी साल national level पे cater किया था, लेकिन एक national policy of education में define किया कि state level पे भी जरूरत है कुछ इसी तरीके के institute की, जो NCRT नेशनल लेवल पे काम करती है, रिसर्च का, पॉलिसी ट्रेनिंग का, मटेरियल डेवलपमेंट का, वो सब काम स्टेट लेवल पे भी अपनी अपनी स्टेट्स में होने चाहिए. एंड द मेन पार्ट इज कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स डेवलप करती हैं जो सीबीएसई के स्कूलों में फॉलो होती हैं. एंड बट इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर एनी स्टेट कि वो सभी स्टेट्स एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को ही फॉलो करें या करिकुलम फॉलो करें. दे कैन मेक देयर ओन स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स एंड दे कैन मेक देयर ओन state books or textbooks also. This is the main difference between NCERT and SCERT. So like as per the conversation, we are coming to know that, curriculum creation is one of the important tasks of these organizations, SCERT and NCERT. Yes. And here I am giving you an example. For example, ICT in education curriculum developed by National Council of Educational Research and Training, that is NCERT. So NCERT developed the curriculum for the whole nation, and they gave their framework, only framework. Then at state level, SCERT Delhi is the first one who created the student level curriculum for ICT in education. We are in first one in India. तो हमने उनका गाइडलाइंस को फॉलो किया और अपनी स्टेट के लिए डेवलप किया. तो दैट मीन्स कि एनसीईआरटी ने करिकुलम फ्रेमवर्क हमें दिया नेशनल लेवल का. देन वी एज पर आवर लोकल कंटेक्चुअलाइजेशन वी फ्रेम्ड द करिकुलम फॉर आवर स्टेट. So ma'am, now like you have an experience of curriculum creation also. So how do you think, like how tough is this task? Because, by creating this curriculum, we actually mean educating the masses. So how tough do you think is this task? So curriculum basically, if we start, then curriculum banana, it's not a big task or a tough task basically, but curriculum framework बनाना, उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने होते हैं. करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन करना, किसी भी करिकुलम को बनाना आसान है, बट द टफ पार्ट इज ऑलवेज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. तो व्हेनेवर वी थिंक कि हमें करिकुलम बनाना है, तो सबसे पहले उसकी नीड असेस करनी होती है. बिकॉज आप किसी एक
पर्टिकुलर सिस्टम में चल रहे हैं, आप स्कूल एजुकेशन में हैं, आप बच्चों को एक फिक्स्ड करिकुलम दे रहे हैं, वो कोर्सेज पढ़ रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, देन आप एकदम से सडनली ये लेकर आते हो कि आपको ये करिकुलम भी पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। एग्जांपल लूं तो कि आपको इस साल से एक नया करिकुलम और पढ़ना है, तो सबसे पहले उसकी नीड देखना बहुत जरूरी है। तो अवर फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द नीड असेसमेंट ऑफ दैट एरिया जिन विच हम करिकुलम चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं या हैप्पीनेस करिकुलम हो या एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, हमने सबसे पहले नीड असेस करी कि आर वी रिक्वायर्ड दीज करिकुलम, हमारे बच्चों को इसकी जरूरत है या नहीं है, या सिर्फ एक करिकुलम लेकर आना है इसलिए हम करिकुलम लेकर आएंगे। तो हम सबसे पहले हमने उसकी नीड असेस करी। देन नीड असेसमेंट के बाद हमारा सेकेंड टास्क होता है इसमें टारगेट ग्रुप सेट करना। अगर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अदर करिकुलम, अदर एरियाज करिकुलम, को करिकुलर टाइप एरियाज होते हैं, उसमें काफी कुछ टफ हो जाता है। देन वी हैव टू थिंक अबाउट कि किस टारगेट ग्रुप के लिए हम कर रहे हैं। लाइक हैप्पीनेस, बहुत सोचना पड़ा किस टारगेट ग्रुप तक लेके जाए, फर्स्ट से 12th तक क्यों ना लेके जाए। देन उसके बाद आया नहीं, फर्स्ट से 12th नहीं ले जा सकते हैं। देन फर्स्ट ईयर में हम लेकर आए हैप्पीनेस करिकुलम जो क्लास 1 से 8 तक के लिए था। देन उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद आया कि अब जरूरत है कि फर्स्ट से 8 तक बच्चा खुश रहना सीख चुका है, उसको पता है कि खुशी कैसे मिल सकती है। देन उसके बाद जरूरत हुई कि 9 से 12 का बच्चा है उसके लिए क्या करना चाहिए। 9 से 12 के बच्चे का टारगेट क्या होता है, करियर, प्रोफेशनल जर्नी। तो मेन टारगेट के अराउंड हमें रहना है, तो हम लेकर आए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम हमारा नेक्स्ट टारगेट लेवल पूरा करने के लिए हम उसको लेकर आए। इसके बाद होता है टीम फॉर्मेशन। तो एक किसी भी करिकुलम के लिए डेवलप करने से लेकर उसके इम्प्लीमेंटेशन तक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीम। तो उसमें हमारे टीचर्स भी होते हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हम लेते हैं, और हम इसमें बच्चों की हेल्प भी लेते हैं। हम एक कंसल्टेशन वर्कशॉप टाइप करते हैं जिसमें हम बच्चों के फीडबैक भी लेते हैं, बिकॉज आप जिनके लिए करने जा रहे हैं उनके फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है कि वो चाहिए नहीं चाहिए, या उनके इस बारे में क्या सोच रखते हैं वो। तो बच्चे भी इसमें हम कई बार पार्टिसिपेट कराते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करना। बिकॉज कोई भी करिकुलम आप बना रहे हैं, इट्स नॉट फॉर द 1 ईयर और 2 ईयर, वो एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ हमें बनाना होता है, एंड इट विल फॉर अपकमिंग मे बी 4 to 5 years, मे बी 10 years, मे बी 20 years। तो जो करिकुलम फ्रेमवर्क हमारा बनता है वो हमारा हमेशा फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ बनता है। उस करिकुलम फ्रेमवर्क के बनने के बाद देन उसके बाद हम उसका कंटेंट डेवलप करते हैं। देन इट इज नाउ क्वेश्चन कि कंटेंट, सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ्स इनका बना रहे हैं, तो कंटेंट हमें टीचर्स के लिए सब एग्जांपल के लिए मैं दूंगी आईसीटी इन एजुकेशन करिकुलम मैंने डेवलप किया था हमने। तो हमने उसमें बिकॉज वो क्लास 6 से 10th तक के लिए था, तो हमने उसमें सबसे पहले करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया। देन उसके बाद हमने उसमें बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स बनाई थी। नाउ हियर कम्स अगेन कि हमने जब एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम बनाया, बिकॉज ये करिकुलम हम नहीं चाहते थे कि बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन की तरह आए। बच्चे इसको ऐसे ना ले कि भैया हमें तो एक और करिकुलम मिल गया, नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट मोर, नाउ वी हैव टू डू मोर स्टडीज। नो, वी डोंट वांट दिस। तो हमने इसमें टीचर्स तक इसको रेस्ट्रिक्ट किया। हमने जैसे आईसीटी इन एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक बनाई, टीचर्स के लिए मैनुअल बनाया। नाउ इन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम वी मेक ओनली टीचर्स मैनुअल। हमने सिर्फ टीचर्स के लिए मैनुअल बनाया और हर रोज एक पीरियड रखा अपने क्लासेस में, और बच्चों को कहा, टीचर्स को गाइड किया, प्रॉपर ट्रेनिंग दी कि आप इसको बच्चों को पढ़ाइए सिर्फ उसी पीरियड में। सो दैट, तो इनिशियली हमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस में, मतलब प्रॉब्लम्स आई थी शुरू में। टीचर्स ने बड़ा रेजिस्ट किया था कि एक नया चीज पढ़ाने को मिल रही है। साइंस साइड के बच्चों ने बड़ा रेजिस्टेंस किया था कि यार एक और चीज आप टीचर लेकर एक और लेकर आ गए हो। बट एज सुन एज बच्चों ने उसको करना शुरू किया, उन्होंने दे फील कि लाइक ये तो कुछ हमारे लिए हो रहा है। नाउ वी हैव टाइम जहां हम अपने बारे में सोचते हैं। अब हम हिंदी के बारे में नहीं सोच रहे, हम फिजिक्स के बारे में नहीं सोच रहे कि हमें मैथ्स के बारे में ये फॉर्मूला याद नहीं करना। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरा अपना टाइम है ये। तो बच्चों ने उसको ग्रैब करना शुरू किया।
जब भी हम कोई कंटेंट डेवलप करते हैं किसी भी करिकुलम को लेके, तो हम उसकी पायलटिंग करते हैं. So piloting is the main component of any curriculum development phase. और कंटेंट का जब हम पायलट करते हैं, देन उसके बाद जो भी हमें फीडबैक मिलते हैं, हम उसके बेसिस पे कंटेंट रीडिजाइन करते हैं. देन उसके बाद हम अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं. ट्रेनिंग के बाद हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. तो ऑल प्रोसेस होने के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पर जाते हैं. तो बहुत सारे करिकुलम, जैसे मैंने पहले भी बोला था, फेल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन. कि हमने करिकुलम बना दिया, टीचर्स को ट्रेनिंग दे दी, सपोर्ट मटेरियल दे दिया, नाउ वी आर फ्री, बट नॉट. यहाँ से हमारी एक्चुअली जर्नी स्टार्ट होती है. बिकॉज आप जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो टीचर्स के पास बहुत सारे इश्यूज आते हैं. मतलब यू कांट बिलीव, जब हमने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम शुरू किया या आईसीटी इन एजुकेशन शुरू किया, इतने सारे करिकुलम में मतलब हमें इतने इश्यूज आए थे. और लेकिन बट क्योंकि हम लोगों ने एक इम्प्लीमेंटेशन टीम बनाई हुई थी, वी आर फोकसिंग ऑन प्योरली इम्प्लीमेंटेशन. So maybe after 1 year and 1.5 year, I'm saying कि we are successfully done this. मैम, इसमें जो जितना पैशनेटली आप बोल रहे हैं, मुझे वो देख के एक तो बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन जो कमेंडेबल जॉब है, नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस किसी चीज को हेड करते हैं ना, तो इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा बैकफुट ले लेता है. बट हियर आई हैव सीन the pace at which this entrepreneurship mindset curriculum is being deployed and the way it has been executed, it has massive impact on the way the kids are thinking now and the way kids are talking. And you guys are doing boot camp, summer camps with kids online, and their results are already visible there, just because they are part of the EMC curriculum, and they are not doing it for studying or marks purpose. They are doing it to improve their life, and I think that's the most commendable job which I found out, that implementation was done at a rapid pace and it was done immaculately. Thank you. So now, leaving these, technical questions, I'd say, apart, now that you put in so much hard work, how do you feel when, such curriculum is a success? If you could tell us that also. सक्सेस उसका, मुझे जब एक बच्चा मुझे कभी बोलता है या एक टीचर आके बोलती है ना कि मुझे ये करिकुलम जब से आया है ना, मैंने अपने बारे में सोचा, आई फील लाइक कि मतलब हाँ, नाउ अब हम सक्सेसफुल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. जब हम हमारा एक कंपोनेंट है इसमें लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन. तो जब बच्चा एंटरप्रेन्योर से, उसमें हम डायरेक्ट लाइव बात कराते हैं बच्चे से. बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अब हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं. अदरवाइज ये बच्चों के क्लासरूम्स में जाते थे हमारे एंटरप्रेन्योर, और बच्चों से इंटरेक्शन करते थे. अब ये ऑनलाइन हो रहा है तो हमें भी क्वेश्चंस, बिकॉज हम सारे एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन अटेंड नहीं कर पाते थे. जब ये ऑनलाइन होता है तो हम बच्चों के क्वेश्चन सुनते हैं. देन वी थिंक कि यार, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक बच्चा अपने बारे में, अपने करियर को लेके इतना ज्यादा वरिड हो सकता है. बिकॉज मैं जब अपने बारे में सोचती थी तो मुझे नहीं लगता था कि मैं आगे आने वाले 10 सालों के बारे में सोचती थी. मैं कल मेरा कौन सा पेपर है मैं उसके बारे में सोचती थी, या मेरा 12th में इतने नंबर आ जाएंगे मैं उसके बारे में सोचती थी. बट नाउ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि मुझे MBA करनी है, मुझे ना एक अपना स्टार्टअप करना है, एंड आफ्टर द स्टार्टअप मुझे मतलब स्टार्टअप शुरू करने के लिए आप मुझे सजेशन ये दीजिए. एंटरप्रेन्योर से पूछा उन्होंने, ब्लॉसम कोचर जी से, आप मुझे ये बताइए कि मैं MBA करूं या नहीं करूं, और MBA करूं तो MBA करने के बाद कितने साल का मुझे एक्सपीरियंस लेना चाहिए. आई एम अमेज्ड टू हियर दिस क्वेश्चन. यार, ये बच्चे अपने बारे में इतना सोच रहे हैं. फिर वही बच्चे जब हमें कॉल करते हैं, वो बताते हैं कि मैम, मैंने ये सोचा अपने बारे में, मेरा एक इनोवेटिव आइडिया है ये, और नाउ आई एम थिंकिंग कि मुझे अपनी फैमिली को लेके, जो मेरे आसपास सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेके भी सोचना चाहिए. तो मुझे मतलब इसकी सक्सेस रेट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. एक टीचर जब मुझे आके बोलती है कि ये करिकुलम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमें भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, मैं खुद, मेरे अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप हो रहा है, देन उसका सक्सेस रेट मुझे समझ में आता है कि नाउ वी आर इन राइट डायरेक्शन. That sounds really great, and we hope the education system keeps going in the best direction, so that our youth is always the best. We all will make it. Yeah, actually a combined effort is necessary here. Purely combined effort. So true.
So now that this, entrepreneurship mindset curriculum has been introduced in the Delhi schools, so how important do you think is the entrepreneurship mindset? Like introducing it from such a young age, how important do you think it is? So, entrepreneurship mindset curriculum was launched in 2019-20 academic session by Delhi government for the students of class 9th to 12th in the schools of Directorate of Education. So with the vision that students may think about their own career. So इसका एक main reason था the students may nurture their own qualities and abilities and then think about their own professional journeys. They take charge of their own career, whether they want to go in a job, in a business or in a family business. Whenever they want to go and wherever they want to go. Whatever they do with an excel. So इसी विजन को लेके हमने ये करिकुलम शुरू किया. मैं यहाँ एक जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा उसको मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ बताना चाहती हूँ. आई वाज इन एमएनसी. मैं अपना ही एग्जांपल यहाँ दूंगी. आई वाज इन एमएनसी. तो बीटेक की, एमटेक की, देन उसके बाद जॉब एमएनसी में हुई. आई वाज इन एजुकेशन फील्ड बट इतना करने का नहीं मौका मिलता था. तो 2010 व्हेन आई जॉइंड एससीईआरटी, उसके बाद से मुझे यहाँ पे जिस तरीके से काम करने को मिला, तो मुझे लगता अगर मेरे को ये पता होता आई हैव दिस क्वालिटी, आई हैव दिस एबिलिटीज इन मी, तो मैं शायद इस प्रोफेशन में बहुत पहले आ जाती. मैं अपना शायद बीटेक एमटेक ना करके मैं शायद एजुकेशन बैकग्राउंड ही लेती और उसी में यहाँ आती. नाउ मैं 10 साल बाद जाके पीएचडी इन एजुकेशन या एमए इन एजुकेशन नहीं करती. So what we want that a student may know about their own qualities and abilities at the right age, so that they must take care of their own professional journey without thinking कि मैं शायद ये कर सकता था, मैं ये कर सकती थी. ये सब नहीं सोचना, सिर्फ ये सोचना है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, तो मुझे ये करना चाहिए. एंड अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ तो भी ठीक है हमारा, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट्स की बात करते हैं इसमें. सो व्हाट आर द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट? लाइक ड्रीम बिग, टेक रिस्क, बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर, परसिवरेंस. कि आपने क्योंकि आप आज की सिचुएशन देख रहे हैं, चारों तरफ इतना कुछ चल रहा है कि ये टाइम ऐसा है कि हम कितने केसेस सुन रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं. 12th के बच्चे बहुत परेशान हैं कि हमारा क्या होगा आगे. जो बच्चे अपना इस टाइम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं या कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, वो बहुत परेशान है क्या होगा आगे. सो दिस इज द टाइम वेयर द स्टूडेंट हैव द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट्स. वो अपने आप को संभाल कर अपने फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं. तो हम बहुत ही जल्दी हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं. तो एक राइट एज में बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना is the requirement and the need of an hour. That is so true, ma'am. And I think ये बहुत important है कि हम बच्चों को जितनी जल्दी हो सके एक mindset develop कर सकें problem solving का, ताकि whenever they face a situation they can use and fall back to these tools. सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, but life में कोई भी चीज आती है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा. Actually, entrepreneurial mindset is not only for the professional journeys. ये personal life में भी बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है. जो मुझे लगता है कि सब में हमें पता होता है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है. लाइक आई एम थिंकिंग कि आई एम ए गुड लीडर, आई एम ए गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, बट मुझे अब पता चल रहा है कि मैं इतने गुड लीडर हूँ, तो शायद मैं पहले नेता ही बन जाती, पॉलिटिक्स में चली जाती. बट नॉट लाइक दैट कि हमें राइट एज पर हमें अपनी क्वालिटीज और एबिलिटीज का पता चल जाना चाहिए. दैट्स द मेन फोकस ऑफ दिस विजन. मैम यही थॉट प्रोसेस शायद हमारा भी है, थिंक क्रिएट नर्चर, बच्चों के अंदर एम डालने का. और एक क्वेश्चन आया है सोशल मीडिया से जो शायद बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम का क्या आप लोगों का प्लान है कि हम यंगर बच्चों के पास भी इस माइंडसेट को देने का कोई वे आउट ढूंढे, लाइक 5th ऑनवर्ड्स बच्चे या 6th ऑनवर्ड्स, क्योंकि बाहर आई थिंक काफी सारी जगह पे बच्चे एज यंग एज 13, 12, 10 years as well are going through some sort of entrepreneurial mindset understanding process, ताकि they can take baby steps into a bigger as and when they grow, फिर वो higher up the ladder they can rise up. तो आप लोगों का भी कोई प्लान है ऐसा?
अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, बिकॉज हमारा 1st to 8th तक हैप्पीनेस करिकुलम है, वेयर वी वांट कि बच्चा खुश रहना सीखे। बिकॉज आप जब तक कोई भी काम खुश रह के नहीं करोगे, तब तक इंजॉय नहीं करोगे, तब तक आप उस काम में सक्सेस नहीं ले सकते हो। लाइक आपने खुद ही बताया था कि आपने भी 1 साल का जो ब्रेक लिया था कि आप अपने काम में सेटिस्फाइड नहीं थे। तो सबसे पहले बच्चे को खुश रहना बहुत जरूरी है, एंड इट्स ऑल, मतलब सभी के साथ है कि मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ, बिकॉज मुझे मजा आता है। मुझे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम में आई फील लाइक कि मैं अपने बच्चों के लिए भी ऐसा ही कुछ करूं, ऐसे ही कुछ बनाऊं उनके लिए भी, उनको भी कुछ इस तरीके का हो, या मेरे साथ भी ये होता है कि मैं काश उस टाइम पे भी, हमारे टाइम पे भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम होता, तो शायद मेरी डायरेक्शन जहां मैं आज हूँ और पहले हो सकती थी, या मैं कहीं और अच्छी जगह कुछ और कर सकती थी किसी और के लिए। तो अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी तो हम 1st to 8th हैप्पीनेस एंड देन 9th to 10th एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम करते हैं। Ma'am, this has been adopted by the schools of Delhi. Do you think it can be, incorporated in the curriculums of other private schools also? बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के लिए या प्राइवेट स्कूल के बच्चे के लिए नहीं है। दिस इज ओनली फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए ये है, और वो बच्चा मेरा भी है जो प्राइवेट स्कूल में है, किसी और का भी गवर्नमेंट स्कूल में है। एंड क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि हम इसको सिर्फ लिमिट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हर बच्चे के लिए, बिकॉज दिस इज द नीड एंड ऑफ एन आवर। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि क्रिटिकल सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं। हमारा सबसे पहले मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि हम एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं। हम जब एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं एक बिजनेसमैन, टाटा, बिरला एंड अंबानी, इन टाइप के हमारे माइंड में इमेजेस आती है। बट एंटरप्रेन्योर जब हमने इस करिकुलम को शुरू किया था, तो उससे पहले हमारे माइंड में भी वही इमेजेस आती थी एक्चुअली। बट जब हमने इसका करिकुलम को शुरू किया, तो हमने बहुत स्टडीज करी, रिसर्च स्टडीज करी, देन हमें एक डेफिनेशन मिली एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो प्रॉब्लम से घबराता नहीं है, मुश्किलों से घबराता नहीं है, उनका सामना करता है, असफलताओं से पीछे नहीं भागता है, वो उनमें अपने लिए कुछ नया ढूंढता है, वो अपने आसपास जो समाज है उसके लिए कुछ नया करने की सोचता है, जिसमें उसको भी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिले। तो इस तरीके की डेफिनेशन होती है एक एंटरप्रेन्योर की। तो हम सभी एज ए पेरेंट यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप हो। जब हमने इसका विजन शुरू किया था, तो हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने हमें एक बात बोली थी, जो आज मुझे बहुत सक्सेसफुल, मतलब बात लगती है कि जैसे वो बात इसी टाइम के लिए बोली थी। उन्होंने कहा था कि 25 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था जो आज बिजनेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक ई कॉमर्स। कोई सोच नहीं सकता था कि ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन हमें सब सामान मिल जाएगा या घर बैठे हमें खाना मिल जाएगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था 8-10 साल पहले तक भी। तो ये सब एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जिनके होते हैं, वो अपना फ्यूचर भी सोच के इनोवेशन, कुछ बड़ा, कुछ नया सोच रखने की सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते जो एग्जिस्टिंग है आज उसको ही हम आगे लेके जाएं, वो सोचते हैं कुछ नया करें, कुछ इनोवेटिव करें। तो आज की सिचुएशन में अगर हम इसको रिलेट करें, तो हमने 5 to 6 मंथ पहले भी नहीं सोचा था कि कोविड जैसी सिचुएशन आएगी, एंड हमें कोरोना में मास्क, सैनिटाइजर जैसे बिजनेसेस भी मिलेंगे। सैनिटाइजर हम अपने बच्चों को भी स्कूल में देना पसंद नहीं करते थे, प्रेफर नहीं करते थे कि अल्कोहल बेस्ड होता है और बच्चों के हैंड्स खराब हो जाएंगे। बट नाउ हम सारा दिन ऑफिस में बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों पे सैनिटाइजर्स लगा रहे होते हैं। मैंने अपने घर में 10 to 15 लीटर सैनिटाइजर ला के रख लिया है। तो नाउ जिसने उस टाइम ये सोचा नहीं था, और नाउ जैसे ही ये सिचुएशन आई और इसको ग्रैब किया और ये सारे बिजनेसेस में एंटर किया, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन, एंड उसने अपने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को यूज किया। तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड विद द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल। वी वांट कि ये सभी स्कूलों में जाए और हमारे देश का हर बच्चा एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ आगे पढ़े, बिकॉज ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की प्रॉब्लम नहीं रहे, उसके अंदर नहीं होगा, वो आने वाले समय में जॉबलेसनेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा, इकोनॉमी जो हमारी डाउन जा रही है उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। That's great to know that we together, all people of the nation will
come together, we can, think and actually make a better nation for tomorrow. So I think we all Yes. are going to strive for that and work hard for that. And you have been an inspiration for all of us today, showing us a very good Thank way you. to go ahead. We thank you a lot to coming on board with us for this session. Thank you so much for taking out time from your busy schedule. Thank you, Thank Aditi. you very much, Dr. Sapna, to share your views and share what kind of effort does it take to bring in a thought-provoking leadership into a regular education curriculum. And we hope a lot of people will learn from you. Thank you for being part of our show. Thank you. Thank you, Shishir. Thank you, Aditi. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Before we end today's session, I would like to thank all of you for joining us for this session. You may also reach out to us with any suggestions and feedback that you want to share with us. Also, you may write to us about a topic that you would want to understand more, and we'll get the experts for you. Thank you.